Okay. As you know, in IELTS, you need to write different types of sentence structures. And you also know that you need to paraphrase in number of IELTS modules. For example, you might be required to do, I mean, paraphrasing is one very important skill that you will require probably in writing task 1 and in writing task 2 as well. And if you know paraphrasing, it will also help you out to identify the answers in listening and reading. So paraphrasing skills are very, very important. And one of the best way to do paraphrasing of any sentence is to convert active into passive and passive into active. So this is, so you need to have the skills of converting active into passive voice and passive into active. So I would recommend you people will be, before we jump on to true, false, not given, I want you people to understand how we can, go ahead with active and passive voice. Okay. Now, first and the foremost thing, what do you mean by active and passive voice? For example, you know that there are 12 types of tenses. 12 प्रकार के tenses होते हैं. So in simple, you have got, past में 4 प्रकार के tenses होते हैं, present में 4 प्रकार के tenses होते हैं, and in future also you got 4 types of tenses. But let me tell you, students, so you have got total 12 types of tenses. Simple past, simple past continuous, past perfect continuous, वगैरह वगैरह वगैरह. And let me tell you, students, that you cannot convert active, I mean passive from active in all these 12 types of tenses. I repeat, you cannot convert active, passive from active in all these 12 types of tenses. ये पता नहीं मुझे आप लोगों में से कितने लोगों को पता होगा कि you cannot convert passive voice from active voice in all these 12 types of tenses. आप सिर्फ और सिर्फ फॉर एग्जाम्पल कितने टेंसेस में से कन्वर्ट कर सकते हो मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन पहले बताना चाहूंगा कि एक्टिव सर होता क्या है और पैसिव होता क्या है. फॉर एग्जाम्पल, एलिस इज टेकिंग टी. Can you tell me exactly how can you convert this into passive? Can anyone try converting this simple sentence into passive voice? Alice is taking tea. Can anyone help me out, converting this active voice into passive? Because ये बहुत important है. मैंने पहले भी बताया था कि आपको ये काम लगेगा in, when you are doing paraphrasing, when you are, changing the meaning, आपको वही रखना है, but you just want to, just want to change the, structure of the sentence. Okay, tea is taken by Alice. Very good. Okay, tea is taken by Alice. तो सबका गलत हो गया. टी इज बीइंग टेकन बाय एलिस. देखो सबका आंसर गलत है. आई कैन सी मोस्ट ऑफ मेनी ऑफ यू हैव गिवन द आंसर्स, एंड ये आंसर बीइंग तो आप भूल ही गए. सो यू कैन सी दैट योर रिगार्डलेस ऑफ द बैकग्राउंड यू आर कमिंग फ्रॉम, आपका एक्टिव पैसिव वॉइस इतना अच्छा नहीं है. सो एलिस इज टेकिंग टी, अभी ले रही है, तो टेकन तो आप कह सकते हो टी इज बीइंग टेकन बाय एलिस. ओके, तो आपने देखा होगा, यू कैन सी ओवर हियर दैट एलिस इज द सब्जेक्ट एंड टी इज द ऑब्जेक्ट. जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट होता है, ऑब्जेक्ट टेक्स द पोजीशन ऑफ द सब्जेक्ट. बाद में यू नीड टू हैव द फॉर्मेट. मैं बाद में आता हूँ उस फॉर्मेट पे, कैसे वर्ब को आप चेंज कर सकते हो. एंड फाइनली बाय से यू आर गोइंग टू बी, इट इज द सब्जेक्ट इज गोइंग टू बी फॉलोड बाय. जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एलिस इज टेकिंग टी, यहाँ पे एलिस इज द सब्जेक्ट and T is the object. So you can see over here that when it gets converted into passive voice, Alice becomes the object, और वो object जो होता है वो by से succeed होता है. So T is being taken by Alice. Okay, can you help me out with this? चलिए, tornado destroyed 30 houses. Tornado destroyed 30 houses. Can you help me out converting this into passive voice? Yes. Tornado destroyed 30 houses. Yes. I want everybody to participate in this. It is very, very important. Okay, one of you have converted. The Nupur has done that. Okay, fine. Yes. Anyone else? Because ये जो messages आप मुझे भेजते हो सिर्फ और सिर्फ मुझे मिलते हैं. They are not general messages. Okay, so let us try to convert this into, तो यहाँ पे subject जो होगा वो है tornado in the active voice, and then 30 houses are going to be तो यहाँ पे एक चीज याद रखनी. When you convert active from I mean passive from active voice, तो याद रखना एक छोटी सी चीज मैं कहना चाहूंगा. पहले इतना याद रखो. यहाँ पे देखो, एक छोटी चीज कहना चाहूंगा. ये 30 हाउसेस जो है, आपने ये देखना पड़ेगा कि जब ऑब्जेक्ट जो है इट बिकम्स द सब्जेक्ट, क्या वो सिंगुलर है कि प्लूरल है. बिकॉज ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, वो चेंज भी अच्छी तरह से कर देते हैं, बट दे कमिट मिस्टेक्स इन अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट दैट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू सब्जेक्ट, तो वो शायद, जैसे कि इस केस में टोर्नाडो जो है वो सिंगुलर है और 30 हाउसेस प्लूरल है. लेकिन जब 30 हाउसेस बिकम्स द ऑब्जेक्ट, जैसे कि देखो इस केस में है 30 हाउसेस,
तो इसका मतलब ये हुआ कि बाद में वॉज नहीं आएगा, इट इज ऑल, ये पास्ट में है। डीपी जो पता नहीं कौन है लेकिन डिस्ट्रॉयड है, इट इज पास्ट टेंस। तो जाहिर है क्या होगा, 30 हाउसेज वेर डिस्ट्रॉयड बाय द टॉर्नेडो। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे द नहीं लगेगा, ये गलती से आ गया है, सो यू नो रिमूव दिस। You don't need to add any additional thing. 30 houses were destroyed by tornado. ये यहाँ पे दी नहीं लगेगा. So don't worry about that part. So I repeat, what you have done is you need to convert that into active से passive करने के लिए आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लाना है, नंबर वन। मेक श्योर दैट यू नो सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में आता है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो वो चेंज हो जाएगा। एंड देन यू नीड टू मेक द करेक्ट सेंटेंस। नाउ कैन यू हेल्प मी आउट विद दिस? वी शैल सर्व द कंट्री। वी शैल सर्व द कंट्री। ओके, दो लोगों ने आंसर सही दिया है, वेरी गुड। निराली इज ऑल्सो, किंजल, मधु, नुपुर। ओनली गर्ल्स आर गिविंग द राइट आंसर्स। व्हाट इज द केस? विल बी श्योर, हर्ष विल बी कहां से आएगा? यू नो ये आपका फ्यूचर टेंस है, तो आंसर आएगा, क्या आएगा इसका आंसर? कंट्री शैल बी सर्व्ड बाय अस। दिस इज द राइट यू नो ट्रांसफॉर्मेशन of active voice to passive voice. There you are. Are you all getting what I am trying to say? अगर ये आपको नहीं आता तो मैं आपके लिए एक टेबल देने वाला हूं। आई एम गोइंग टू गिव यू अ टेबल। सेल बी, चिराग आपने लिखा है कंट्री सेल सर्व्ड बाय अस, नहीं, कंट्री सेल बी सर्व्ड बाय अस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये छोटी छोटी मिस्टेक्स ना करें। तो याद रखना है, एज वी कैन सी इन द सेंटेंसेस अबाउ, sentences given above, in the passive voice the subject and the object exchange their positions. आप देख सकते हो कि सब्जेक्ट और देखिए कि पहले केस में एलिस और टी, तो एलिस की जगह टी ने ले ली और टी की जगह एलिस ने ले ली। सो यू कैन सी दैट subject and object are changing their positions. In other words, the object takes up the function of the subject and the subject that of the object. So दोनों ने अपनी चीजें चेंज कर दी। Any questions up to this point of time, everybody? Have you understood what I'm trying to say? Active passive voice is very very important to do in order to do proper paraphrasing. One of the most important ways of doing paraphrasing is to convert active or into passive and vice versa. Understood students? अब मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज दिखाने वाला हूं। आई एम गोइंग टू शो यू दिस टेबल, और मैं चाहूंगा कि ये टेबल को आप मेमोराइज कर लो। आई वॉन्ट यू पीपल टू मेमोराइज दिस टेबल। और इस टेबल के द्वारा मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कितने टेंसेस होते हैं, हाउ मेनी टेंसेस आर देयर। आई टोल्ड यू बिफोर, हाउ मेनी टेंसेस आर देयर? यस, हाउ मेनी टेंसेस मैंने बताया था? 12 टेंसेस होते हैं ना। देयर आर 12 टेंसेस। वेरी गुड, वेरी गुड, देयर आर 12 टेंसेस। और यहाँ पे कितने टेंसेस है मुझे बताने का कष्ट करेंगे, यहाँ पे कितने टेंसेस होते हैं? आई मीन सॉरी, हाउ मेनी टेंसेस कैन यू सी ओवर हियर? You know 8 tenses है, there are only 8 tenses. Are you able to understand what I am trying to say? There are only 8 tenses. इसका मतलब ये हुआ कि आप एक्टिव में से पैसिव सिर्फ और सिर्फ यही 8 tenses का कर पाओगे। The remaining 4 tenses ऐसे, I don't want to go into the detail of that, बट बाकी के 4 tenses में आप पैसिव एक्टिव से पैसिव नहीं बना सकते। यही एक 8 tenses है जिसमें आप एक्टिव से पैसिव बना सकते हो। तो ये आपको समझना जरूरी है, हर चीज का पैसिव नहीं बनेगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये टेबल को मेमोराइज कर दो। ये बहुत मुश्किल से मैंने ये टेबल बनाया हुआ है। जैसे कि अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है और एक्टिव वॉइस में है, टेक और टेक्स है, तो इसका हो जाएगा इज और ऑब्लिक आर टेकन। मतलब अगर सिंगुलर सब्जेक्ट, मैंने पहले भी बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट पार्ट में चला जाता है तो हो सकता है वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। जैसे वो टॉर्नेडो और 30 हाउसेस का एग्जाम्पल आपको शायद याद होगा। 30 हाउसेस व्हेन इट बिकेम द सब्जेक्ट इट वाज प्लूरल, तो हमने वर किया था, वॉज नहीं किया था। तो ये आप इसलिए यहाँ पे ऑब्लिक दिया है कि अगर सिंगुलर है तो इज लगाए, पैसिव में कन्वर्ट करते हो ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को उसमें से सब्जेक्ट बनाते हो, और अगर प्लूरल है तो आर हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस है, इज ऑब्लिक आर टेकिंग है, तो इज आर बीइंग टेकन। ये अगर टेंस टेबल याद है आपको तो आपका काम आसान। प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज हैव टेकन, तो हो जाएगा इसका हैज ऑब्लिक हैव बीन टेकन। सिंपल पास्ट में टुक है तो वॉज वेर टेकन। तो आपको मैं समझाऊंगा दो चीजों, कौन सी चीज का ध्यान रखना है। पास्ट कंटिन्यूअस है तो वॉज ऑब्लिक वेर टेकिंग, तो हो जाएगा वॉज ऑब्लिक वेर बीइंग टेकन। पास्ट परफेक्ट है, उसका एक्टिव वॉइस है तो हैड टेकन का इस्तेमाल किया होगा, जाहिर है, तो इसका पैसिव में कन्वर्ट करना है तो हो जाएगा हैड बीन टेकन। सिंपल फ्यूचर है तो सेल ऑब्लिक विल और टेक है, तो इसका हो जाएगा सेल ऑब्लिक विल बी टेकन। और फाइनली फ्यूचर परफेक्ट है, सेल ऑब्लिक विल हैव टेकन, उसका बन जाएगा सेल ऑब्लिक विल हैव बीन टेकन।
ये चीज का आप इस्तेमाल लाइफ टाइम काम लगेगा, और मैं चाहूंगा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। दिस विल हेल्प यू आउट। अगर आप अपने फॉर एग्जांपल सिबलिंग्स को, मतलब अपने भाई बहन को या अपने बच्चों को भी अगर सिखाना चाहते हो एक्टिव पैसिव वॉइस, और अगर आपने ये टेबल दे दिया तो उनका काम बहुत 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 आसान हो जाएगा। मैं चाहूंगा इसका ध्यान रखें आप। लेट मी नो व्हेन यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, लेट मी नो, आई विल देन गो फर्दर। हो गया? डन एवरीबॉडी? इज इट डन? वेरी गुड, एक्सीलेंट। नाउ अब देखिए, अगर ये टेबल आपके सामने, तो देखो आपका काम कितना आसान हो जाता है, मैं आपको बताना चाहूंगा। ओके, वेरी नाइस, दैट्स ग्रेट। नाउ दिस इज द टेबल इन फ्रंट ऑफ यू, विल गो स्टेप बाय स्टेप। पहला है, हम लेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। नाउ यू विल बी यूटिलाइजिंग दिस टेबल। इसमें सिर्फ इतना याद रखना है कि यही चीज का इस्तेमाल करना है। चलिए, ओके, नाउ लेट अस टेक द फर्स्ट वन, सिंपल प्रेजेंट। आप देख सकते हो टेबल में भी पहला सिंपल प्रेजेंट है, ही टेक्स एक्सरसाइज डेली। अब इसका इस्तेमाल करके इसका पैसिव में कन्वर्ट करो। मेक श्योर दैट आप ये चीज का इस्तेमाल करो, यू नीड टू यूटिलाइज दिस थिंग। ये चीज का इस्तेमाल करके यू कन्वर्ट दैट इनटू पैसिव। चलिए, कौन करेगा? नाउ लेट गेट मी द आंसर। आपके सामने सब कुछ रेडीमेड है, ऑल यू नीड टू डू इज यूटिलाइज दिस टेबल, ही टेक्स एक्सरसाइज डेली, कन्वर्ट दैट इनटू पैसिव। चलो फटाफट सबके सब इसका इस्तेमाल करो। I want answers from everybody. Let this be an interactive session. ये जिंदगी भर आपको एक्टिव पैसिव वॉइस याद दिला देगा। ओके फाइन। तो इसका क्या हो जाएगा? टेक्स और टेक्स। एक्सरसाइज सिंगुलर है क्या प्लूरल है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इज एक्सरसाइज सिंगुलर और प्लूरल? एक्सरसाइज है कि एक्सरसाइजेस है? इज इट एक्सरसाइज और एक्सरसाइजेस? सिंगुलर है, वेरी गुड, एक्सरसाइज सिंगुलर। तो जाहिर है उसके पीछे इज लगेगा या आर लगेगा? इज इट गोइंग टू बी फॉलोड बाय इज और आर? Very good, nice. Okay, so is लगेगा. Okay, so answer of this is going to be exercise is taken daily by him. आपने याद रखना है exercise is taken daily by him। आपको याद रखना है कि जो ऑब्जेक्ट होगा, जो ही यहाँ पे सब्जेक्ट था ही, इज इट गेटिंग क्लियर? तो ही का आप हर वक्त फॉलो करोगे लास्ट में बाय हिम, तो ही का हो गया हिम। सो यू कैन ऑल्सो राइट एक्सरसाइज इज टेकन बाय हिम डेली, ये भी सही आंसर है, आई वुड लाइक टू टेल यू। बट इसके अलावा या डेली आप कर सकते हो स्तुति, बट बेटर ये है कि बाय को बाद में इस्तेमाल करो, दैट इज मोर प्रेफरेबल। सो एक्सरसाइज इज टेकन डेली बाय हिम। ये एग्जाम्पल है आपका सिंपल प्रेजेंट, ये एग्जाम्पल है सिंपल प्रेजेंट। ओके, yeah, you can do that, but don't change it, Nupur, don't change it. Okay, okay, then take this one, present continuous. Let us take this example. Yeah, that is right, that is right, but you I mean, if possible, don't change it. Chalo, he's taking, I'm now going ahead. Students, we have got plenty of work to do. Present continuous अगर है तो उसका कैसे करेंगे? Present continuous, he is taking exercise now. I want you people to utilize this table. चलिए, सब लोग मेहनत करें, सब लोग ये समझे कैसे करना। यही 8 टेंसेस है जिसका आप एक्टिव से पैसिव में अनुवादन कर सकते हो। एवरीबॉडी, बाय बाद में रखो, बाय को लास्ट में रखो तो काम आसान हो जाएगा। कीप बाय एट द एंड। ओके, सो देख सकते हो एक्स, इसका आंसर है, लेट मी नो हु इज गोइंग टू यूटिलाइज इट। हाँ, इसका आंसर है एक्सरसाइज इज बीइंग टेकन नाउ बाय हिम। इज इट गेटिंग क्लियर? तो हमने बाय हिम का बाद में एग्जांपल ले लिया। हाउ मेनी ऑफ यू गिवन, आई मीन गॉट द आंसर करेक्ट? क्या ये टेबल आपको इजी पड़ रहा है? आर यू, डू यू बिलीव दैट दिस टेबल इज हेल्पिंग यू आउट? यस और नो? डू यू बिलीव दैट दिस टेबल इज हेल्पिंग यू आउट? ये तो टेबल को मेमोराइज कर लो। काफी बच्चे ऐसा बोलते हैं कि सर ये बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है, इसका ये एक्टिव का पैसिव कैसे करें, बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये टेबल को मेमोराइज कर लो, ये जिंदगी भर याद रखो, एक भी एक्टिव पैसिव वॉइस में प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ओके, दिस इज द सेकंड वन, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। थर्ड कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट। सो लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ दिस, ही हैज जस्ट टेकन एक्सरसाइज। चलिए, प्रेजेंट परफेक्ट, रॉ नंबर 3। आई वॉन्ट एवरीबडी टू पार्टिसिपेट, शांति से काम करो। मैंने आपका एक्टिव पैसिव वॉइस बहुत आसान कर दिया है। जस्ट का कहां इस्तेमाल करोगे? जस्ट का अगर अर्थ का अनर्थ हो जाएगा,
तो जस्ट का इस्तेमाल कैसे करना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज अलमीन एक्सरसाइज हैव नहीं आएगा, एक्सरसाइज सिंगुलर है। एक्सरसाइज काफी लोगों ने मैंने देखा कि हैव का इस्तेमाल किया है, एक्सरसाइज इज सिंगुलर। तो वो चीज याद रखनी, एक्सरसाइज का सिंगुलर में ही इस्तेमाल करना है। इसका आंसर है एक्सरसाइज हैज जस्ट बीन टेकन बाय हिम। अगर मैंने देखा काफी लोगों ने ऐसा लिखा है एक्सरसाइज हैज बीन टेकन जस्ट बाय हिम, अगर ये लिखते हो तो इसका अर्थ पूरा मतलब चेंज होता है। इसका मतलब ये होता है कि एक्सरसाइज सिर्फ इसने ही ली है। और अगर मैं बोलता हूं एक्सरसाइज हैज जस्ट बीन टेकन बाय हिम, मतलब हुआ कि अभी अभी उसने एक्सरसाइज खत्म किया। अब तो ये याद रखो, जस्ट का अगर आपने गलत इस्तेमाल कर दिया तो द आंसर इज गोइंग टू बी रॉन्ग। अंडरस्टूड? एक्सरसाइज हैज जस्ट बीन टेकन बाय हिम। एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स अप टू दिस पॉइंट ऑफ टाइम? प्रेजेंट टेंस के मैंने तीन टेंसेस ले लिए, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट। नाउ आई एम गोइंग टू मूव ऑन टू द पास्ट टेंसेस। चलिए पास्ट टेंसेस में जाते हैं। Okay. He took exercise yesterday. Let us see how you do it. He took exercise yesterday. Del, I don't know, but make sure that you don't change it. That's more preferable. He took exercise yesterday. Column number, row number 4. चलिए, वेरी गुड। हो सके तो बाद में बाय कर सकते हो, यस्टरडे बाद में भी ला सकते हो, लेकिन प्रिफरेबल ये है कि बाय हिम जो है वो लास्ट में हो। प्रिफरेबल इट इज दैट बाय हिम रिमेन्स एट द एंड। Okay, so let us see the answer. Answer is exercise was taken. Exercise was taken yesterday by him. This is the perfect answer of this question. Any questions, any doubts up to this point of time? Absolutely clear? Okay, fine. Let's go ahead now. अब आता है हमारा पास्ट कंटिन्यूस। आप इसके साथ टेंसेस भी समझ रहे हो। पास्ट कंटिन्यूस मतलब पास्ट में अगर कोई चीज होती है कंटिन्यूसली। He was taking exercise. He was taking exercise. वर्ब जब प्लूरल होता है तब साहिल वर्ब का इस्तेमाल करना है, वर्ब का। एक्सरसाइज सिंगुलर है ना, इसलिए हमने वॉज का इस्तेमाल करते हैं, वॉज या हीज का। ओके, चलिए क्या आंसर आएगा इसका? यू नीड टू यूटिलाइज दिस वॉज वेयर बीइंग टेकन। अब इस्तेमाल करो ठीक से इसका। ओके, लेट अस सी द आंसर। काफी लोगों ने आंसर्स मुझे दिए। ये चैट जो है डायरेक्ट है, तो चैट जो है मैं ही सिर्फ देख सकता हूँ, द अदर्स कैन नॉट सी। Okay, no issues, but I can see the chats of all the people. You can always send me the answers. इसका आंसर है exercise was being taken by him। क्योंकि exercise singular है इसलिए इसका आंसर वेरी गुड। सब ज्यादातर बच्चों का आंसर सही है। I can see that। जब अगर यहाँ पे exercises होता, he was taking exercises, then the answer would have been exercises were being taken by him। I hope this is clear to you। Now we are moving into the third tense of past, past perfect। चलिए past perfect में जाते हैं। He has already taken exercise। He has already taken exercise। अब देखो, कन्वर्ट करो। Very good। I can see a lot of answers coming from you people। Very nice। Okay, so इसका आंसर जो होगा, the answer of this is, I can see a lot of you people have now getting correct answers। इसका आंसर सही है। Let us check it out। Exercise had already been taken by him। Exercise had already been taken by him। This is the correct answer। यहाँ पे ऑलरेडी अगर इधर उधर होता है तो प्रॉब्लम नहीं है, बट ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है ओवर हियर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर यहाँ पे हैड टेकन है तो आपका हैड बीन टेकन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाइल कन्वर्टिंग। तो इसको मिस नहीं करना है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अंडरस्टूड? ओके, सो वी हैव डन 3 सिंपल आई मीन प्रेजेंट टेंसेस के जो है, जिसको हमने एक्टिव में से पैसिव किया। देन वी कन्वर्टेड 3 टेंसेस ऑफ पास्ट, पास्ट टेंस, एंड वी कन्वर्टेड देम इनटू पैसिव। अब फ्यूचर के 2 ही टेंसेस है जिसको आप एक्टिव से पैसिव कर सकते हो। लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ दिस सिंपल फ्यूचर। ही विल
take exercise tomorrow in the morning? Let us see. टेबल का इस्तेमाल कीजिए, एक्सरसाइज बिकम्स द सब्जेक्ट। और एक चीज याद रखें, अगर यहाँ पे विल का इस्तेमाल किया है तो आप जब पैसिव में कन्वर्ट करते हो तो विल ही रहेगा। आई रिपीट, अगर आपने विल का इस्तेमाल सिंगल एक्टिव वॉइस में विल का इस्तेमाल किया है तो पैसिव वॉइस में भी विल का ही इस्तेमाल होगा। अगर एक्टिव वॉइस में शेल का इस्तेमाल किया है तो पैसिव वॉइस में भी शेल का ही इस्तेमाल किया जाएगा। और क्योंकि यहाँ पे विल का इस्तेमाल किया गया है, यू ओनली नीड टू यूटिलाइज विल इन द पैसिव वॉइस। वेरी गुड। So let us take the answers. Let us see the answers what you are getting. बाद में मजा आएगा. Okay. Let us see. Exercise will be taken tomorrow in the morning by him. I don't know how many of you got this correct. Exercise will be taken tomorrow in the morning. वो कॉम्प्लीमेंट है by him. हर आप देखिए हर एक सेंटेंस में मैंने by him को बाद में रखा है. I have kept it probably at the end. This is how it works. क्लियर? वेरी गुड। आई कैन सी ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन देखो अगर टेबल का इस्तेमाल करोगे तो आसान हो जाएगा। या यू कर सकते हो स्तुति, या यू कैन डू दैट। एनीवे, नाउ लास्ट फ्यूचर परफेक्ट, लेट अस सी। ही विल हैव टेकन एक्सरसाइज, ही विल हैव टेकन एक्सरसाइज, उसने कर लिया होगा वहां, जब आप कल जाओगे तब, कभी भी जाओगे तब कर सकते हो, लास्ट में कर सकते हो। डेल, आई डोंट नो व्हाट्स योर नेम, बट यू कैन डू इट, देयर इज नथिंग रॉन्ग, दिस इज मोर प्रेफरेबल। डेल, विशाखा, सॉरी। ओके, ही विल हैव टेकन एक्सरसाइज, ही विल हैव टेकन एक्सरसाइज। चलिए क्या आएगा? एक्सरसाइज will have been taken by him. Very good. Exercise will have been taken by him. So this is what is going to be the passive voice. Very good, very good. I hope this is clear now. Clear हो गया? एक्टिव पैसिव वॉइस में बहुत डिफिकल्टी से भी समझा सकता था आपको, फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करके हम समझा सकते थे, बट ये बहुत आसान तरीका है। तो मेरी आप लोगों से, आई ओनली वांट टू एडवोकेट वन थिंग, जस्ट मेमोराइज दिस टेबल. By memorizing this table, you probably would not face any problems whatsoever in converting. और देखिए ये सिर्फ ये टेबल आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प नहीं करेगा. दिस इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू आउट, कन्वर्टिंग फ्रॉम पैसिव टू एक्टिव, क्योंकि पैराफ्रेजिंग सिर्फ पैसिव वॉइस को कन्वर्ट करना नहीं है. Paraphrasing is all about converting passive into active as well. So if a sentence is being given in active voice, convert into passive. And if it is given in passive, convert it into active. But all you need to know is this proper table. Any questions, any doubts? I hope this type of, I have taken this session probably for the very first time. And I changed the way I taught, active passive voice. Initially, I used to teach active passive voice with the help of, a lot of formulas, and it was only confusing the students. But I hope this method is fine. Has everyone understood? First of all, before we move on. Okay, great. Very nice. Thank you so much. I can see a lot of positive responses coming. Very good. So this was all fine. Now let us move ahead. अब थोड़ा सा difficult session लेते हैं. I would want you to take the difficult session. So let us go with the new share. Okay. So today we are going to do one very important session. या ये पूर्वी, थैंक यू। या पूर्वी, इसको इस्तेमाल करोगे, टेबल को मेमोराइज कर लो। अगर आप सब लोगों ने टेस्ट, फॉर एग्जांपल अगर स्क्रीनशॉट लिए होंगे, और एल्स इफ यू आर नॉट टेकन द स्क्रीनशॉट, दिस सेशन इज एनी हाउ गोइंग टू कम डाउन ऑन आवर वेबसाइट, सो यू कैन ऑल्सो गो टू द लिंक, और लिंक में जाके सारे एग्जाम्पल्स को वापस देखो। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि यू प्रॉब्ली इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस, you will not face lots of problems in converting active and passive and vice versa. Okay, so this is what I am going to do today. True, false and not given for the uninitiated. What is the meaning of for the uninitiated? Matlab, what is the meaning of for the uninitiated? Yes. Yeah. Okay. हाँ, जिनको जिनको पता नहीं है, फॉर एग्जाम्पल दोज हु डू नॉट नो द ट्रू फॉल्स, आई मीन ये क्या है. ओके, वेरी गुड. सो दिस इज ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, और उसका दूसरा नाम है यस नो नॉट गिवन. वेरी गुड. ओके, नाउ दोज हु आर नॉट, दोज हु आर न्यू टू IELTS, and those who are not knowing what the true false not given and yes no not given is,
let me tell you, it is a part of reading session and it is one type of question that comes in your examination. I have students facing who used to, I mean, who are complaining me that sir, we face lots of problems in true false not given and yes no not given. Now before I move ahead, मैं सबको ये कहना चाहूंगा कि ट्रू फॉल्स नॉट गिवन यस नो नॉट गिवन, काफी बच्चे ऐसा आके मुझे बोलते हैं कि सर मुझे ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में पता नहीं मुझे ही क्यों प्रॉब्लम है। तो मैं सबको ये कहना चाहूंगा कि ट्रू फॉल्स नॉट गिवन और यस नो नॉट गिवन ये आपका प्रॉब्लम नहीं है, इट इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम। मतलब ऐसा कोई बच्चा ही नहीं है जो पैदा हुआ है जिसको ट्रू फॉल्स नॉट गिवन और यस नो नॉट गिवन में प्रॉब्लम हो। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। वापस दोहराना चाहूंगा, ऐसा कोई बच्चा ही नहीं है जिसको ट्रू फॉल्स नॉट गिवन या यस नो नॉट गिवन में प्रॉब्लम हो। आपका काम यह है कि ये जो डैमेज होता है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन और यस नॉट, उसको कम से कम इसको कम से कम किया जाए। Let me tell you, we have had word with British Council and IDP people who are setting the papers of IELTS. उन्होंने खुद ने बोला है कि इफ हम लोग तो पेपर बनाते हैं ट्रू फॉल्स नॉट गिवन यस नॉट गिवन का, रीडिंग पेपर में ये क्वेश्चंस डालते हैं, लेकिन अगर आप हमें ट्रू फॉल्स नॉट गिवन करने के लिए दे तो हो सकता है हम भी मिस्टेक्स करें। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको अननेसेसरली स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है कि सर मेरा ही ट्रू फॉल्स नॉट गिवन गलत है। ज्यादातर बच्चों को ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में प्रॉब्लम्स आती है, सो यू आर नॉट द ओनली वन इन दिस यूनिवर्स टू फेस दिस प्रॉब्लम। तो स्ट्रेस कम कर लो। इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा, मेहनत कम नहीं करनी है। ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट नो मैटर हाउ मच यू प्रैक्टिस, आप पूरी जिंदगी ट्रू फॉल्स नॉट गिवन को दे दो और 70 साल के बाद मैं आपको ट्रू फॉल्स नॉट गिवन दूं तो हो सकता है 10 में से एक आध प्रॉब्लम आपको भी हो। सो डोंट वरी। नाउ फर्स्ट, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन और यस नो नॉट गिवन दोनों एक ही टाइप ऑफ क्वेश्चंस है। यू मस्ट बी नोइंग दैट, और इफ यू डोंट नो लेट मी टेल यू, दोनों एक ही प्रकार के क्वेश्चंस है। फॉर इन स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू आपकी जो टेक्निक है उसमें कोई फर्क नहीं रहेगा। सो द वे यू अप्रोच ट्रू फॉल्स नॉट गिवन इज द सेम दैट यू आर गोइंग टू अप्रोच यस नो नॉट गिवन, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट पार्ट। ये सबसे डिफिकल्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, एज यू कैन सी ओवर हियर। ज्यादातर 5 या 7 क्वेश्चंस होते हैं ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में एक ग्रुप में। और मैंने काफी बच्चों को ये भी सुना हुआ है कि सर एक रीडिंग के पूरे एग्जामिनेशन में तकरीबन 21-22 ट्रू फॉल्स नॉट गिवन आए। सो इफ यू आर नॉट गुड एट ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, देयर इज अ स्मॉल पॉसिबिलिटी कि आपको प्रॉब्लम हो। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यूजुअली once in a while, I mean, for example, in out of the 3 passages that you are going to get in reading, there will be probably one passage जिसमें एक group of true false not given, मतलब के 5 to 7 questions तो होंगे ही होंगे। इफ द एग्जामिनर डिसाइड्स के इस बार तो पेपर बहुत टफ लगाना है, तो हो सकता है कि हर रीडिंग के पैसेज में ट्रू फॉल्स नॉट गिवन हो, बट यू डोंट नीड टू वरी। आप प्रैक्टिस करोगे तो डैमेज बहुत कम होगा, आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। द आंसर्स आर यूजुअली गोइंग टू कम इन द सिक्वेंशियल ऑर्डर। सबसे बड़ी बात ये है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन की या फिर यस नो नॉट गिवन की, दैट द आंसर्स ऑलवेज कम इन सिक्वेंशियल ऑर्डर। जैसे कि पहले के बाद ही दूसरे का आंसर आता है, दूसरे के बाद ही तीसरे का आता है। तो इतनी चीज याद रखनी है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर पहला है, आप अब उसके पहले मैं ये चीज कहना चाहूंगा कि आप पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे या पैराग्राफ को पढ़ेंगे। व्हाट आर यू गोइंग टू डू इन ट्रू फॉल्स नॉट गिवन? दिस इज हाउ द ट्रू फॉल्स नॉट गिवन इज गोइंग टू लुक लाइक इन द रियल एग्जामिनेशन। यहाँ पे पैसेज नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे पैसेज इज नॉट गिवन टू यू एग्जैक्टली। तो आप देख सकते हो कि ये जो नीचे है, दिस आर द क्वेश्चंस, और ऊपर जो है यस नो नॉट गिवन, आपको ये लिखा जाता है कि इफ द स्टेटमेंट एग्रीज विद द व्यूज ऑफ द राइटर, इफ द स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट्स, और इफ इट इज इम्पॉसिबल टू से। मतलब आप क्वेश्चन को, तो पहला तरीका ये है, सर इसका करना कैसे है, इसके साथ पैसेज भी आएगा, बट आई हैव नॉट गिवन द पैसेज ओवर हियर। ओके, तो पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप क्वेश्चंस को पहले पढ़ेंगे। यू आर नॉट गोइंग टू रीड द पैराग्राफ फर्स्ट, यू आर ऑलवेज गोइंग टू रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट। पहली एक चीज याद रखो, और एक साथ 2 क्वेश्चंस को रीड करोगे। अब मैं इसका कारण बताऊंगा, व्हाई यू नीड टू डू दिस, व्हाई यू नीड टू डू दिस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज, ये आपके क्वेश्चंस हैं। ओके, देन रीड ऑल द स्टेटमेंट्स केयरफुली, trying to understand what the whole sentence means rather than simply highlighting keywords. Watch out for qualifying words such as some or always. अब करना क्या है, जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो, अगेन लेट मी टेल यू दैट आंसर्स आर गोइंग टू कम इन सिक्वेंशियल ऑर्डर। जैसे कि 1 to 5 है, तो 1 के बाद ही 2 का आंसर आएगा, 2 के बाद 3 का आंसर आएगा। ट्रू मतलब आपने जो क्वेश्चन पढ़ा उसकी इंफॉर्मेशन ठीक उसी तरह, भले स्ट्रक्चर चेंज कर दिया हो सेंटेंस का, बट इट इज एब्सोल्युटली इन द सेम वे, और इट कन्वेज द सेम मीनिंग इन द पैराग्राफ एज इन द क्वेश्चन, तो आंसर ट्रू होगा।
उससे बिल्कुल ऑपोजिट है, देन इट इज गोइंग टू बी फॉल्स, और अगर दिया ही नहीं है तो नॉट गिवन। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इसमें स्कैनिंग और स्कीमिंग दोनों स्किल्स का इस्तेमाल होगा। सर स्कैनिंग और स्कीमिंग कैसे? काफी इंस्टीट्यूट ये कहती है दैट यू ओनली नीड टू हाईलाइट द कीवर्ड्स एंड ट्राई टू लोकेट द कीवर्ड्स। अगर कीवर्ड्स उसके अंदर मिल जाते हैं तो ये इसका आंसर ट्रू है, लेकिन ये मेथड कारगर नहीं है। आई वुड लाइक टू टेल यू दैट कीवर्ड्स आर ओनली गोइंग टू हेल्प यू आउट इन लोकेटिंग द आंसर। आंसर आप पूरा बड़ा पैराग्राफ है, 700-800 वर्ड्स का पैराग्राफ है, तो आपको कीवर्ड हेल्प करेगा इन लोकेटिंग द पोजीशन ऑफ द आंसर, बट इवेंचुअली यू नीड टू अंडरस्टैंड द एंटायर क्वेश्चन एज ए होल। आप कीवर्ड्स को मद्देनजर रखते हुए अगर आपने करने की कोशिश की, हो सकता है एक आध दो क्वेश्चन का आंसर ठीक हो जाए, बट यू मे कमिट मोर लाइक यू आर मोर लाइकली टू कमिट मिस्टेक्स इन मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है, अगर आप क्वेश्चन देखते हो, नंबर वन, क्वेश्चन देख के कीवर्ड को आप मार्क कीजिए और वो कीवर्ड का इस्तेमाल करते हुए ट्राई टू फाइंड आउट द लोकेशन इन द पैराग्राफ। उसके बाद उसको पूरा समझने की कोशिश कीजिए। आई ऑलवेज एम ऑफ द ओपिनियन दैट आप पूरा सेंटेंस, पूरा जो क्वेश्चन है उसको समझने की कोशिश कीजिए, रादर देन ओनली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द कीवर्ड्स। काफी वर्ड्स ऐसे हैं जैसे कि सम, ऑलवेज, मैं उस चीज पे आऊंगा जब हम प्रैक्टिस करेंगे, ये ऐसे वर्ड्स है जो पूरा मीनिंग चेंज कर देते हैं, उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगेन ट्राई टू थिंक ऑफ व्हाट सिनोनिम्स माइट बी इन द टेक्स्ट। जो मैंने कहा था कि रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग में वोकैब बहुत इस्तेमाल होगी। लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स दैट वोकैब इज आल्सो गोइंग टू प्ले अ मैसिव रोल इन रीडिंग। रीडिंग में एक वोकैब जो मैं आपको अगला पैसेज करेंगे तो शायद इससे पता चलेगा कि वोकैब का महत्व क्या है। वोकैब में काफी वर्ड्स ऐसे जो बिल्कुल गलत कर देंगे, जो आपको पूरा समझ नहीं आएगा कि आप उसको बोलोगे नॉट गिवन है, जबकि वोकैब उसका मतलब निकालती होगी। सो वोकैब आपको कॉन्स्टेंटली इंप्रूव करने पड़ेंगे। नाउ सर एक क्वेश्चन मैं रीड करूं, जैसे कि एक ग्रुप में 5 क्वेश्चंस हैं, तो काफी बच्चे ऐसा बोलते हैं कि शुड आई रीड वन ऑल द 5 क्वेश्चंस, शुड आई रीड 1 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चंस। फॉर फर्ज कीजिए आपके ग्रुप में 1 to 5 क्वेश्चंस है। I don't want to read all the 5 questions because you won't be able to remember। आपने अगर पांचों 5 क्वेश्चंस को रीड किए तो एक भी क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन आप याद नहीं रख पाओगे, और एक दूसरे की इंफॉर्मेशन, एक क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन दूसरे क्वेश्चन में चली जाएगी। तो ये तरीका तो बिल्कुल कारगर नहीं है। सर तो करना क्या है? यू ओनली नीड टू रीड 2 क्वेश्चंस। 2 क्वेश्चंस को एक साथ रीड करने की कोशिश कीजिए। वापस दोहराना चाहूंगा, व्हेन इट कम्स टू ट्रू फॉल्स नॉट गिवन और यस नो नॉट गिवन, अगर 1 to 5 क्वेश्चंस कर रहे हो तो पहला और दूसरा क्वेश्चन है उसको ही आप रीड कीजिए। अगर आपको लगता है कि 2 क्वेश्चंस की इंफॉर्मेशन मैं याद नहीं कर पा रहा हूं तो एक क्वेश्चन रीड कर सकते हो, लेकिन 2 क्वेश्चंस किस लिए काम लगेंगे, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा व्हाई दिस इज गोइंग टू बी हेल्पफुल। फर्स्ट कीजिए, आई एम ड्राइंग अ स्मॉल पैराग्राफ ओवर हियर। यहाँ पे आई होप यू कैन सी माई ड्राइंग गाइस, आर यू एबल टू सी माई ड्राइंग? या वेरी गुड, दैट्स ग्रेट, थैंक यू। सो अगर आपका ये पैराग्राफ है, देखिए मेरी बात सुनिए, आई एम नॉट, या अगर ये आपका पैराग्राफ, ये पहला पैराग्राफ है, ये दूसरा पैराग्राफ है और ये तीसरा पैराग्राफ है। अब इसको ध्यान से देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्ज कीजिए कि आपका पहला आंसर यहाँ पे है, ठीक है, पहला आंसर आपका यहाँ पे है, ये फर्स्ट का आंसर है, ये दूसरे का आंसर है और ये तीसरे का आंसर है। जो मैंने क्रॉस किए है वो पहला, दूसरा और तीसरा आंसर, दिस इज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। नाउ प्रॉब्लम कभी कभार ये होती है कि अगर आपने पहला किया है, पहला ये है, उसके बाद आप क्या करोगे, आपका पहले का आंसर आ गया, समथिंग ओवर हियर, पहले पैराग्राफ में कहीं पे इस लोकेशन पे आपका आंसर है। नाउ अब क्या करो, पहले का आंसर आ जाता है तो आप क्या करो, तीसरा क्वेश्चन पढ़ लो। मैंने कहा था आपको एक साथ 2 क्वेश्चंस के कीवर्ड, 2 क्वेश्चंस का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। अगेन आई रिपीट, पहला आपने कर दिया, पहले जब आपने स्टार्ट किया था तो आपने 2 क्वेश्चन पढ़े थे, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ गया, नाउ यू आर, अब ये तो खत्म हो गया। अब आप क्या करोगे, तीसरा क्वेश्चन पढ़ोगे व्हाइल बिफोर यू अटेम्प्ट द सेकंड क्वेश्चन। क्यों कारण है? अब इसका कारण क्या है? कैन एनीवन हेल्प मी आउट व्हाई आई एम आस्किंग यू टू रीड द थर्ड क्वेश्चन आफ्टर कंप्लीटिंग, आफ्टर गेटिंग द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन? क्या इसका इसका आप कारण बता पाओगे? कैन एनीवन हेल्प मी आउट ऑन दैट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई यू नीड टू रीड द थर्ड क्वेश्चन, ये इसका कारण। चलिए आप लोग मत सोचो, टाइम जाएगा, मैं आपको बताता हूँ, आई विल एक्सप्लेन यू व्हाई। ओके, ये इसलिए है, फर्स्ट करो मेरी बात सुनो, इसको गौर कीजिए। अगर आपने पहले का आंसर ले लिया, अगर सेकंड जो है वो नॉट गिवन है, आई रिपीट, सेकंड का आंसर नॉट गिवन है, तो ये कहीं पे भी नहीं मिलेगा आपको। तो आप पढ़ते ही जाओगे, पढ़ते ही जाओगे, पढ़ते ही जाओगे, थर्ड लास्ट पैराग्राफ तक पढ़ते जाओगे, टाइम कितना वेस्ट होगा। लेकिन अगर आपने थर्ड का आंसर पढ़ा है,
थर्ड का क्वेश्चन पढ़ा है और आपको लगता है कि थर्ड का क्वेश्चन ये यहाँ पे मिल गया कहीं पे, जैसे कि इट इज गोइंग टू बी ओवर हियर, तो आपको पता चल गया कि सेकंड का जो आंसर है इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी बिटवीन वन एंड थर्ड। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? और इसके बीच में नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको पता चल जाएगा कि सेकंड का आंसर है नॉट गिवन। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से स्टूडेंट्स? क्लियर हो रहा है मैं क्या बता रहा हूं? मैं बताना चाहूंगा कि आंसर्स आर ऑलवेज गोइंग टू कम इन सीक्वेंशियल ऑर्डर। हैव यू अंडरस्टैंड, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से स्टूडेंट्स? यस और नो? पहले इतना समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो मैं इतना कहना चाहूंगा अभी राइट नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट एक साथ दो क्वेश्चंस के कीवर्ड याद रखो। अगर पहले और तीसरे के बीच में अगर हाँ नॉट गिवन है तो फॉर एग्जांपल देन इट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम साहिल, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। यस यू आर राइट साहिल, अगर तीसरा भी नॉट गिवन है तो क्या करेंगे सर? बट एटलीस्ट इट विल हेल्प यू आउट टू सम एक्सटेंट। इज इट गेटिंग क्लियर? ओके, yeah, you can utilize this technique in all the parts of reading, Mitesh. That is what you can do. Okay, now coming back over here, try to think what's, yeah, fourth, always read the questions first and then paragraph. मैंने पहले भी बताया था questions को पहले read करना है। Read maximum 2 questions, not more at a time. एक साथ 2 questions ही पढ़ेंगे। If you're not comfortable reading 2 questions, go for reading only 1. लेकिन मेरी आपसे हल्की फुल्की गुजारिश है कि इतना तो डेवलप कीजिए अपने आप को कि आप एक साथ 2 क्वेश्चंस पढ़ सको एंड यू आर एबल टू रिमेंबर बोथ ऑफ देम। ये टेक्निक ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा आपके लिए, बट आई वांट यू टू डेवलप दिस थिंग। ओके, द स्टेटमेंट्स फॉलो ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। वंस यू फाइंड द फर्स्ट आंसर प्रोसीड टू द नेक्स्ट सेंटेंस। आपको पता होना चाहिए कि अगर पहले का जो है उसके पहले तो दूसरा आने नहीं वाला है। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि पहले के ऊपर तो दूसरा ढूंढने की जरूरत नहीं है, पहले के बाद ही दूसरा आएगा। सो ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। Do not waste too much of time on one question. If you can't find one, mark it as not given. अगर आपको नहीं है मिल रहा है तो not given दे दो। दूसरा कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, अगर नहीं आता है तो एटलीस्ट यू राइट समथिंग। इज इट गेटिंग क्लियर? एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स अप टू दिस पॉइंट ऑफ टाइम स्टूडेंट्स? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू द प्रैक्टिस पार्ट। चलिए इसकी प्रैक्टिस करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डू द प्रैक्टिस। ओके, नाउ दिस इज द पैसेज 1 और मैं चाहूंगा इस पैसेज को आप दिल से पढ़े। आई एम गोइंग टू गिव दिस पैसेज, आप मैं चाहूंगा ये पैराग्राफ पैसेज को दिल से पढ़े आप। Madhubala and yeah, Madhubala, you can write your issues, probably in the chat box. Is it possible? I can give the answer. I am going to give you students 3 to 4 minutes to read this. I am going to give you 3 to 4 minutes. उसके बाद भी टाइम मिलेगा, लेकिन अभी 3 से 4 मिनट में दे रहा हूं आपको। क्लियर? पहले इसको शांति से पढ़ो। आई वॉन्ट यू पीपल टू रीड गो थ्रू दिस प्रॉपरली। मैं बताना चाहूंगा इट्स अबाउट आर्ट्स इन ऑस्ट्रेलिया। सिडनी के ओपेरा हाउस के बारे में है। एक आध दो लोगों ने शायद किया होगा, बट आई वांट देम टू डू इट अगेन। और अगर आपको कोई वर्ड नहीं पता चल रहा है तो आप मुझे पूछ सकते हो। आई विल बी एबल टू हेल्प यू आउट, डोंट वरी। काइंडली गो थ्रू इट। आई डोंट वांट एनी वन ऑफ यू टू लीव दिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके बाद हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे।
Acclaim means recognize. Escalating means increasing. लॉ अबाइडिंग, अबाइडिंग मतलब हम नहीं कहते लॉ अबाइडिंग सिटीजन, मतलब जो अबाइडिंग मतलब उसको ध्यान रखने वाला है, ही विल टेक केयर ऑफ इट. आई वांट एवरीबडी टू रीड प्रॉपर्ली, कोई टेंशन मत लीजिए. इफ यू वांट मोर टाइम आई विल गिव यू. वेयर इज इंटरफर्ड, आई मीन इंटरफियर्ड है. इंटरफर मतलब दखल अंदाजी करना. जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स, ये 25 गलत यहाँ पे आ गया है, सो मेक श्योर दैट यू डोंट यूटिलाइज इट. स्क्वॉबलिंग का मतलब होता है छोटा छोटा झगड़ा, छोटी छोटी चीज़ों में झगड़ा करना. पेटी मतलब बहुत मामूली, स्क्वॉबलिंग मतलब लड़ाई, मामूली मामूली लड़ाई उसको बोलेंगे पेटी स्क्वॉबलिंग. No, you don't need to read the entire para in the examination. It's just because I want to explain you everything. आप इसको ऊपर से भी देख सकते हो, बट इन इट इज इम्पोर्टेंट. अभी आपके पास टाइम है तो आप रीड कर लीजिए. ओके, या टेल मी व्हेन यू हैव रीड स्टूडेंट्स. बीटरली मतलब कड़वाश. बीटर मतलब इट कम्स फ्रॉम द वर्ड कड़वाश जो होता है, उससे बीटरली मतलब कड़वाश के साथ कंप्लेन करना, उसको हम बीटरली कहेंगे. ओके, आई कैन सी फ्यू स्टूडेंट्स आर रीडिंग. आई वॉन्ट एवरीबडी टू रीड. या आप ज़्यादा डन आ जाएंगे तो मैं आगे पढ़ना चालू कर दूंगा. ओके, ग्रेट. या वेरी नाइस. I can see a lot of few people have done completed reading. Okay, great. So let me give you a small brief out of what this entire passage is all about. This passage, now when you read the entire paragraph, first of all you need to understand कि ये किसके बारे में है. Can you help me out? ये किसके बारे में पूरा paragraph है? This entire passage is about which thing? Can you help me out on that? This entire passage is about सिडनी का ओपेरा हाउस. एग्जैक्टली, दिस एंटायर पैसेज इज अबाउट सिडनी ओपेरा हाउस. आपको पता होगा सिडनी में एक ओपेरा हाउस होता है, व्हाइट कलर का आता है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज ओपेरा हाउस. इन द फर्स्ट पैराग्राफ दे हैव मेंशन्ड कि ओपेरा हाउस ने ऑस्ट्रेलिया को एक बहुत अच्छी कल्चरल, वर्ल्ड के कल्चरल हिस्ट्री में कल्चरल जो प्लेस है उसमें उसको नाम दिया. सो दिस एंटायर पैराग्राफ टेल्स अबाउट हाउ ओपेरा हाउस हेल्प्ड वर्ल्ड टू अंडरस्टैंड
कि ऑस्ट्रेलिया इज नॉट ओनली गुड एट ट्रैवलिंग या फिर ऐसा नहीं है, बट ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो वेरी गुड कल्चरली। तो ये इसके बारे में है। द सेकंड पैराग्राफ टेल्स अबाउट हाउ ओपेरा हाउस लुक्स लाइक, वो कैसे लगता है। सिडनी एक बहुत चहल पहल वाला सिटी है, उसमें ओपेरा हाउस बना हुआ है, बीच में है ये ओपेरा हाउस। द थर्ड पैराग्राफ ये मेंशन करता है इसको किसने बनाया, डिजाइन किसने किया। इट इज बीइंग डिजाइन बाय अ सेलिब्रेटेड डेनिश आर्किटेक्ट। सेलिब्रेटेड का मतलब होता है रिनाउंड, बहुत जाना माना डेनिश आर्किटेक्ट जिसका नाम है जॉन उडजॉन। तो ये उसके बारे में है। और यहाँ पे इन दिस वेयर माय कर्सर इज मूविंग, कि उसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी। सोचा था कि इसमें बनाएंगे, बट इट वेंट क्वाइट अहेड ऑफ द सो कॉल्ड डिसाइडेड कॉस्ट। तो गवर्नमेंट ने इंटरफियर करना चालू किया कि भाई इतनी कॉस्टिंग तो हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आर्किटेक्ट तो डिज़ाइन करता है, बट इवेंचुअली गवर्नमेंट ने उसको पे करना था। तो ये इंटरफियरेंस के कारण उडजॉन ने ये शपथ ली कि मैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया में वापस कभी नहीं आऊँगा, वैसा करके वो चला गया। ओके, फाइनली अब ये जो लास्ट पैराग्राफ है उसमें ऐसा लिखा है, द साइज ऑफ द इंटीरियर ऑफ द बिल्डिंग वाज स्केल्ड डाउन एप्रिसिएबली। स्केल्ड का मतलब जो उसने बोला था, भाई उडजॉन ने बोला था कि इसका 15 फुट होना चाहिए, तो उसका कम कर दिया, 10 फुट कर दिया गवर्नमेंट ने। दैट इज व्हाट वी कॉल ए स्केलिंग डाउन। तो काफी बाद में नए आर्किटेक्ट्स को रखा गया और उसने जो उडजॉन ने डिजाइन किया था उसके हिसाब से काफी उसको कम कर दिया। और आज की तारीख में लास्ट 4-5 लाइन जो है उसमें ऐसा लिखा है कि आज की तारीख में ओपेरा हाउस एक बहुत अच्छी जगह है जहां पे दुनिया के जाने माने संगीतकार, जाने माने आर्टिस्ट आते हैं और अपना परफॉर्मेंस देते हैं। एनी क्वेश्चंस अप टू दिस पॉइंट ऑफ टाइम स्टूडेंट्स? हैव यू अंडरस्टूड? I just give a brief out of what the entire paragraph is all about, slowly and steadily. Understood now, everybody? वेरी गुड, वेरी नाइस, ग्रेट। चलिए, दिस इज ऑल द एंटायर पैसेज इज ऑल अबाउट। ठीक है, चलिए नाउ लेट अस मूव ऑन टू द रियल पार्ट, द क्वेश्चंस। नाउ ये पहला क्वेश्चन है। आई एम गोइंग टू गिव यू एग्जैक्टली 1 मिनट, मैं 1 मिनट दूंगा। ये मैंने पूरा पैराग्राफ नहीं दिया, वही पैराग्राफ लिया है जिसमें ये क्वेश्चन का आंसर शायद है। सो आई एम गोइंग टू गिव यू 1 मिनट, माई टाइम, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आप अभी आंसर्स नहीं दोगे, 1 मिनट के बाद आंसर दोगे। Okay, so time is up. Before first and the foremost thing I would like to tell you is that कि आप एग्जाम में, मैंने ये गणित पहले भी आपको सिखाया था, या आई एम कमिंग टू द आंसर, बट मैंने आपको पहले भी गणित सिखाया था कि ये गणित को आपको हर वक्त याद रखना है। दैट फॉर एग्जाम्पल इफ देर आर, आपको पता है इन रीडिंग देर आर 40 क्वेश्चंस टू बी कंप्लीटेड इन 60 मिनट्स। ये मैथमेटिक्स मैंने पहले भी सिखाया था, लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन। So if you got a group of, so can you tell me how many seconds are you supposed to spend technically for one question? If you got 40 questions to be completed in 60 minutes, how many seconds can you spend on one question? So what you need to do is just do simple mathematics. वो ये है कि 60 divided by 40। अगर मैं ये करता हूँ, क्योंकि 60 मिनट का पेपर है और 40 क्वेश्चन है, तो इसको मैं वो करते हैं 2 3 जा 2 2 जा, सो दिस इज गोइंग टू बी 1.5। सो इसका मतलब ये हुआ कि ऑन वन क्वेश्चन यू कैन स्पेंड 1.5 मिनट्स। नो एग्जैक्टली 1 मिनट मत देखो, आप एग्जैक्टली मैथमेटिकल जाते हैं। 1.5 मिनट्स पर क्वेश्चन हुआ एग्जैक्टली। नाउ एज्यूम कीजिए कि आपका जो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है उसमें 6 क्वेश्चंस है। आपको पता होगा कि
ये 1.5 मिनट का लॉजिक हर क्वेश्चन पे नहीं चल सकता. यू नो दैट देयर आर क्वेश्चंस दैट कैन बी कंप्लीटेड इन 30 सेकंड्स, जिसका आंसर आपको 30 सेकंड में मिल जाएगा. एंड देयर आर क्वेश्चंस दैट माइट टेक 2 मिनट्स टू कंप्लीट द टू गेट द आंसर. तो आप हर वक्त वो 1.5 मिनट का लॉजिक लगा के चलोगे तो नहीं काम आएगा. तो आपने ये करना है कि अगर एक ग्रुप है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन का, जिसमें 6 क्वेश्चंस है, देयर आर 6 क्वेश्चंस, सो ऑल यू नीड टू डू इज 6 into 1.5. क्या आंसर आएगा 6 into 1.5? Yes students, what's the answer you are going to get? If I do 6 into 1.5, you will get 9 minutes. थोड़ा सा मैथमेटिक्स क्लियर होना जरूरी है. तो इसका मतलब ये हुआ, आप ये मत सोचो कि एक क्वेश्चन पे कितना स्पेंड करना है. ये पूरा ग्रुप जो आपका है 6 क्वेश्चंस का, that should be completed in 9 minutes. Are you able to understand that? What I'm, भले मैं यहाँ पे आपको एक एक क्वेश्चन के एक एक 1.5 मिनट जाता दे रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में ये चीज याद रखनी है आपको कि एक ग्रुप को मल्टीप्लाई कीजिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस मल्टीप्लाई बाय 1.5. सो यू नीड टू मेक श्योर दैट द एंटायर ग्रुप answers you are only going to, I mean, you should not be spending more than 9 or 9.5 minutes, if not more. आप 30 सेकंड ज्यादा ले सकते हो पर ग्रुप. तो ये गणित आपको बिठाना होगा. इज इट क्लियर एवरीबॉडी? यस और नो? समझ आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं आपको? यस और नो? ओके ग्रेट, वेरी नाइस. ओके, हाँ चलिए ठीक है. नाउ कमिंग बैक ओवर हियर, द बिल्डिंग इज पॉसिबली द मोस्ट फेमस ऑफ इट्स टाइप इन द वर्ल्ड. द बिल्डिंग इज पॉसिबली, अब यहाँ पे वर्ड जो है वो पॉसिबली है. पॉसिबली मतलब इट इज, ऐसा नहीं लिखा है कि बिल्डिंग इज द मोस्ट फेमस, तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा. उन्होंने पॉसिबली का इस्तेमाल किया. पॉसिबली मतलब ये शायद मोस्ट फेमस ऑफ इट्स टाइप इन द वर्ल्ड है. ऑफ इट्स टाइप, उस टाइप का सबसे फेमस बिल्डिंग है पॉसिबली. अगेन उन्होंने ऐसा नहीं कहा है कि सबसे फेमस है, पॉसिबली वन ऑफ द फेमस. इफ यू रीड द लास्ट 3 sentences, I mean last 4, I'm reading from here, completed in 1973 after 14 years of much heated discussion. आपको पता होगा कि उड्जन और गवर्नमेंट के बीच में काफी तू मैं हुई थी. And at a cost of almost 60 million pounds, it is not only the most well-known Australian building in the world. ये सिर्फ एक बहुत अच्छा ऑस्ट्रेलियन बिल्डिंग नहीं है, बट परहैप्स यहाँ पे लिखा है द मोस्ट फेमस डिजाइन ऑफ एनी मॉडर्न बिल्डिंग एनीवेयर. ये शायद बहुत अच्छी फेमस डिजाइन है किसी भी दुनिया में किसी भी बिल्डिंग की अगर कंपेयर करें तो यही चीज यहाँ पे लिखी. यहाँ पे भी पॉसिबली जैसे शब्द का इस्तेमाल किया है, मतलब हो सकता है, और यहाँ पे भी परहैप्स, दोनों तरफ क्वालिफाइंग वर्ड्स का इस्तेमाल किया है. देयरफॉर द आंसर ऑफ दिस इज गोइंग टू बी ट्रू. So answer of first is going to be true. Okay, let us move on to the next one. Again 1.5 minutes. 1 minute दे रहा हूं मैं, चलो आपको फटाफट. I want everybody to participate. अभी बाकी है टाइम आपके पास. Okay, so let us understand this. Yeah, I hope everybody has read, everybody has made a conscious effort of finding the answer. I don't want the answer, but I hope everybody has made a conscious effort of finding the answer. Clear हो रहा है आपको सबको? Okay, great. Now let me explain you. The Opera House drew world attention to the arts in Australia. इसको समझने की कोशिश करते हैं. मैं हर वक्त ये कहता हूँ, एक चीज का हिमायती रहा हूँ कि you need to understand द एंटायर क्वेश्चन एज ए होल. अगर मैं उसको अपनी मातृभाषा में अनुवादन करूं, मतलब अपनी हिंदी लैंग्वेज में, ओपेरा हाउस ने ड्रीव मतलब खींचा वर्ल्ड अटेंशन टू द आर्ट्स इन ऑस्ट्रेलिया. ओपेरा हाउस ने दुनिया का अटेंशन खींचा ऑस्ट्रेलिया की आर्ट्स की तरफ.
I hope this is simple. So it is almost impossible to write of the arts in Australia without mentioning the building that first put the country firmly on the world cultural map. इस आर्ट्स के बारे में अगर जिक्र करना है तो हम ओपेरा हाउस को नहीं छोड़ सकते, जिसने से ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड के कल्चरल मैप पे बिल्कुल ठीक से रखा। तो इसका मतलब यही हुआ कि ओपेरा हाउस ने लोगों का, दुनिया का ध्यान बटोरा ऑस्ट्रेलिया के आर्ट की तरफ। वही चीज यहाँ पे लिखिए, पुट द कंट्री फर्मली ऑन द वर्ल्ड कल्चरल मैप, और वही है आर्ट्स। यहाँ पे कल्चर में आर्ट्स ही आता है। सो आंसर ऑफ दिस इज अगेन गोइंग टू बी ट्रू. So answer of this is also going to be true. Any questions, any doubts, students? Have you understood? Don't worry about getting the wrong answer. मैं जब समझाऊं उसके बाद क्लैरिटी होनी जरूरी है. आई एम ट्राइंग टू गो वेरी वेरी स्लो. आई एम ट्राइंग टू गो वेरी वेरी स्लो ताकि आपको पता चले. सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्लियर? ओके, नाउ लेट अस गो अहेड विद द थर्ड वन. हाँ, आंसर्स विल बी इन सीक्वेंस, बट एक ही पैराग्राफ में है ना. मैंने थोड़ा सा चेंज भी किया है मधुबाला, सो डोंट वरी. ओके, चलिए. Utzon designed the roof to look like the sails of the sailing ship. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. चलिए, Utzon कौन था? Could you remember who was Utzon? Could you recall who was Utzon? Who was Utzon? Nobody remembers who was Utzon. मतलब पहले पैरा वो डेनिस आर्किटेक्ट था ना, जिसके बारे में मैंने कहा था. वो आर्किटेक्ट था, हाँ, जिसने ये सिडनी के ओपेरा हाउस को डिजाइन किया. एग्जैक्टली. ओके, अब देखो, लेट अस सी. लेट मी नो व्हेन यू आर डन. ये मैं जो समझा रहा हूँ उसको भी ठीक से समझिए. आई एम ट्राइंग टू गिव यू लॉट्स ऑफ हिंट्स व्हाइल आई एम एक्सप्लेनिंग. ओके, डन एवरीबॉडी. बसल मतलब चहल पहल. हसल बसल का मतलब होता है चहल पहल, सिटी की चहल पहल. गुजराती में कही घोंघाट. दैट इज व्हाट वी कॉल एज हसल बसल. Okay, now as I have told you, you will be utilizing both scanning and scheming as far as IELTS reading is concerned. तो आप देख सकते हो यहाँ पे. पहले इतना सोचो कि ये सेलिंग शिप वाला कहाँ पे है. तो देखो, सेलिंग शिप वाला यहाँ पे. इसका मतलब आपका आंसर हैज टू बी समवेयर ओवर हियर ओनली. इसके पहले, इसके बाद आपका आंसर. अब इसको ठीक से पढ़ो. नाउ योर जॉब इज टू अंडरस्टैंड दिस. Utzon designed the roof to look like the sails of a sailing ship. Utzon ने Utzon ने ओपेरा हाउस को डिजाइन ऐसे किया कि वो सेल्स, मतलब जो सड़ होते हैं, जो शिप जो होती है, उसके जो व्हाइट कलर के सड़ होते हैं ऊपर जो हवा में, जिसके कारण शिप चलता है, उसका डिजाइन ऐसे किया ताकि वो ओपेरा हाउस का डिजाइन ऐसे किया कि वो लगे जैसे कि वो सेल्स ऑफ द सेलिंग शिप है. शिप का जो सेल्स है उसके जैसा लगे. और यहाँ पे लिखा है, इट्स डिस्टिंक्टिव एंड हाईली original ship has been likened to everything from the sails of sailing ship to broken axles. Okay, अब मुझे बताने का कस करेंगे इसका आंसर क्या आएगा. नाउ yes guys, what is the answer of this one? Okay, इसका जो आंसर है, the answer of this is going to be not given, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लिखा है. Okay, the answer of this is going to be not given. The reason is, यहाँ पे ऐसा लिखा है कि लोग उसको अलग अलग तरीकों से, ओपेरा हाउस को अलग अलग तरीकों से कहते थे, संबोधित करते थे. लाइकन टू एवरीथिंग फ्रॉम द लाइकन मतलब लोग उसको उसके साथ कंपेयर करते थे. काफी लोग ऐसा बोलते थे कि वो सेल्स ऑफ सेलिंग शिप जैसा लगता है.
तो काफी लोग ऐसा बोलते हैं वो टूटे हुए अंडों का जैसा लगता है, लेकिन कहीं पे भी वो ऐसा जिक्र नहीं है कि ओजोन ने ऐसा बनाया है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? कहीं पे भी ये जिक्र नहीं कि ओजोन ने ऐसा बनाया है, लोग उसको अलग अलग नजरिए से देखते थे, but there is no mention about whether ओजोन has exactly designed it that way, therefore the answer is going to be not given. Understood now? ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल था जहां पे आपने कीवर्ड देख के आंसर दे देते हो, ये आपको मुंह की खानी पड़ेगी। तो बेहतर ये है कि आप इसको ठीक से समझो। अंडरस्टूड और नॉट? Yes. Any questions, any doubts, students? Have you understood everybody? I want answers from everybody. सिर्फ जल्दी ने कहा है कि अंडरस्टूड है, बाकी किसी ने नहीं कहा है। Okay. If you want me to explain it again, I can explain it again, but I am trying to go very very slow. इससे ज़्यादा slow करेंगे तो बहुत लंबा time खींच जाएगा. So I am trying to make my best possible efforts to explain you what it means. Understood? वुडजॉन ने डिजाइन नहीं किया था ऐसा, लोग उसको अलग अलग तरीके से संबोधित करते थे, लेकिन वुडजॉन ने ऐसा डिजाइन नहीं किया था. So don't worry about that part. Okay. Now, a few people claim that it is a major architectural work. चलिए. I want everybody to at least attempt all the sessions. सिर्फ there are 7 to 8 questions, तो आप इसको ठीक से सुने. मैं आपको हेल्प करता हूँ. लेट मी हेल्प यू आउट स्टूडेंट्स. इसका आंसर यहाँ पे है, और इसको ठीक से समझने की कोशिश कीजिए, तभी जाके इसको आप ठीक से आंसर दे पाओगे, वरना गलत ही आंसर होगा इसका. Okay. Yes, guys, what is the answer of this? A few people claim that it is a major architectural work. इसका मतलब ये है कि बहुत, पहले इसको, ये क्वालिफाइंग वर्ड्स को समझो, पहले इसको ध्यान से देखो. A few people claim that it is a major architectural work. इसका मतलब क्या हुआ? Can anyone explain? Can anyone explain? I will be unmuting that person. अगर मुझे कोई समझा सकता है तो मैं उसको अनम्यूट करूंगा, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो समझने की जरूरत है. कौन समझा पाएगा? रेज योर हैंड. Nirali, can you explain? Because you have almost given the right answer. Nirali, can you explain? Okay, I am unmuting you. Yeah, explain. किस में ऐसा लिखा है, पहले बताओ मुझे. क्वेश्चन में क्या लिखा है? कैन यू स्पीक अ बिट लाउडर? आई एम, योर वॉइस इज अनऑडिबल. Yeah. Audible, sir? Yeah, you are now. Okay. A few people claim that it is a major architectural work. आर्किटेक्चरल वर्क, या इसका मतलब क्या हुआ? मतलब कुछ लोगों ने ऐसा क्लेम दिया है. बहुत कम लोग ऐसा मानते हैं कि वो एक अच्छा आर्किटेक्चरल वर्क है. पहले इसको समझ लो, है ना? Okay. बहुत कम लोग ऐसा मानते हैं कि वो एक अच्छा आर्किटेक्चरल वर्क है. पहले इसको समझ लो. अब पर पैराग्राफ में ऐसा दिया जो है मैंने कि अंडरलाइन किया उसमें क्या लिखा है? but few would argue with the claim that the opera house is a major contribution to world हाँ, architecture. इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ओपेरा हाउस का मेजर कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड के आर्किटेक्चर में, वो मेजर आर्किटेक्चर वर्क नहीं है. नहीं 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 नहीं, ऐसा बहुत कम लोग कहते हैं. समझो, फ्यू आर्ग्यू. आर्ग्यू मतलब क्या? उसके सामने जाना. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? इज एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग? क्वेश्चन में लिखा है, थोड़ा सा अटपटा है. क्वेश्चन में लिखा है फ्यू पीपल क्लेम दैट इट इज अ मेजर आर्किटेक्चर. बहुत कम लोग ऐसा मानते हैं कि ये अच्छा वर्क है. आप ये लिख पाओगे? कैन यू राइट राइट इन योर, यू नो, आई मीन इन योर नोटबुक एवरीबडी? बहुत कम लोग ऐसा मानते हैं कि ये एक अच्छा काम है, और यहां पे ऐसा लिखा है कि बहुत कम लोग आर्ग्यू करेंगे कि ये एक अच्छा काम नहीं है. कि ये लोग, मतलब बहुत अच्छा काम है, उससे ये ऐसा बहुत कम लोग आर्ग्यू करेंगे कि ये अच्छा काम नहीं है.
ज्यादातर लोग यही कहेंगे कि बहुत अच्छा काम है, और ऊपर क्वेश्चन में लिखा है कि बहुत कम लोग ऐसा मानेंगे कि अच्छा काम है। मतलब कि ये दो सेंटेंसेस है, दे आर कॉन्ट्रडिक्टरी, एक दूसरे के विरोधी है। सो आंसर ऑफ दिस इज गोइंग टू बी फॉल्स। Are you able to understand everybody? Nirali, I hope this was what you were planning to explain. Yes? Okay, great. Okay, have you understood everybody? इसको बहुत समझने वाली बात है। Argue मतलब, argue बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। Argue इज मतलब कि इसके ऑपोजिट है। तो ये बहुत समझने की बात, इससे ज्यादा अच्छी तरह से मैं नहीं समझा पाऊंगा स्टूडेंट्स। तो आपको ये समझने, आपको दिमाग अपना थोड़ा सा ज्यादा जोर देना पड़ेगा, तभी जाके इसको समझ में आएगा। देखो कितना एक आर्ग्यू वर्ड्स के कारण आपका पूरा अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट स्टूडेंट्स? नाउ अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से एवरीबॉडी? ओके, ग्रेट। नाउ सो लेट मी या दैट्स ग्रेट। जाना नहीं है किसी को, ये बहुत अच्छी अच्छी चीज है। मैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए एक और करते हैं। अब देखो ये बहुत अच्छा है। चलिए इसको, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हाँ अब बताओ मुझे क्या आंसर है इसका। इसका आंसर मैं आपकी मेहनत, आपको हेल्प करता हूँ, लेट मी हेल्प यू आउट। इसका आंसर इसमें है, यहाँ में इसके अंदर ही है। चलो लास्ट 5 लाइन्स। मैं चाहूंगा सारे लोग इसका इसका मुझे बताएं आंसर क्या है। यस, आई कैन सी लॉट ऑफ आंसर्स कमिंग। आई वांट आंसर्स फ्रॉम एवरीबॉडी। आप सब लोग कम से कम यस नो नॉट गिवन या ट्रू फॉल्स नॉट गिवन तो लिख ही सकते हो, और कुछ नहीं कर सकते। चलो ट्राई करो। ओके, आई हैव ऑल्सो गिवन यू द लोकेशन ऑफ द आंसर। ओके, लेट मी एक्सप्लेन। नाउ time for me to explain the cost of construction. Yeah, the cost of construction. Okay, let me explain. The cost of construction went more than 50 million pounds over budget. Cost of construction जो था ओपेरा हाउस का, वो जो है 50 मिलियन पाउंड्स से ज्यादा बढ़ गया। फर्ज कीजिए आपने ऐसा सोचा था कि मैं 100 रुपए में 100 मिलियन पाउंड्स में अपना घर बना पाऊंगा, तो उसकी कॉस्टिंग हो गई 155 मिलियन पाउंड, मतलब 50 मिलियन पाउंड्स उसकी कॉस्टिंग ज्यादा हो गई। अगर आप ये पैराग्राफ को गौर से देखेंगे तो इसमें देखो क्या लिखा है, द प्रोजेक्ट वाज इवेंचुअली पेड फॉर बाय अ स्टेट रन लॉटरी, इन रियलिटी द बिल्डिंग कॉस्ट वाज 60 मिलियन पाउंड्स। अगर आप ये लाइन देखेंगे जो जहां पे मेरा कर्सर घूम रहा है, द बिल्डिंग वाज ओरिजिनली एक्सपेक्टेड टू कॉस्ट ओनली 5.5 मिलियन पाउंड्स। जब बिल्डिंग बनाने का स्टार्ट किया तो ऐसा देखा गया था, ऐसा सोचा गया था कि 5.5 मिलियन पाउंड्स में बन जाएगा। बट व्हेन द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड, उसकी कॉस्टिंग हो गई थी 60 मिलियन पाउंड्स। मतलब कि 5.5 से 60, मतलब अगर मैं 60 माइनस 5.5 करता हूं तो मुझे आंसर मिलता है 54.5। आई एम गेटिंग आंसर एज 54.5। निराली ध्यान से देखो मैं क्या बता रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ कि ये इसकी कॉस्टिंग जो है वो 54.5 मिलियन पाउंड्स, मतलब कि 50 मिलियन पाउंड से ज्यादा हो गई कॉस्टिंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर है ट्रू। फॉल्स तब होता तो जब यहां पे लिखा कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन वेंट 50 एग्जैक्टली 50 मिलियन पाउंड्स, तो बात अलग थी, तो आंसर फॉल्स होता। लेकिन उन्होंने भी ऐसा लिखा है कि वेंट मोर देन 50 मिलियन पाउंड्स, मतलब सोचा गया था 5.5 मिलियन पाउंड्स में बनेगा, बन गया 60 मिलियन पाउंड्स में, मतलब 54.5, मतलब 50 मिलियन पाउंड से ज्यादा कीमत ज्यादा बढ़ गई उसकी। तो इसका ये तो सही है ना, द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन वेंट मोर देन 50 मिलियन पाउंड्स। तो इसका मतलब ये हुआ द आंसर ऑफ दिस इज गोइंग टू बी ट्रू। हैव यू अंडरस्टूड और नॉट एवरीबडी? यस और नो? अगर यहाँ पे एग्जैक्टली लिखा होता 50 मिलियन पाउंड्स तो आंसर ठीक चलो फॉल्स था, लेकिन ऐसा नहीं है। 55 50 से ज्यादा हो गया तो वही तो लिखा है कि 50 से ज्यादा, एग्जैक्ट नहीं बोला लेकिन 50 से ज्यादा, और हुआ है 54.5। तो जाहिर है आंसर इज गोइंग टू बी यस। यस और नो एवरीबडी?
एनी क्वेश्चंस? पता चला समझाने के बाद, पता चला व्हाट इज द व्हाट इज द व्हाई इज दिस इज द आंसर एवरीबॉडी? ओके ग्रेट। अब एक छोटा सा काम करते हैं, छोटा सा काम करते हैं, एक ही क्वेश्चन करते हैं। लेट अस सी हाउ दिस वर्क्स। जस्ट वन क्वेश्चन। एक मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। ये कीजिए, चलिए बताइए इसका आंसर क्या है। और इसका ये देखते हैं इसका आंसर कौन सही देता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका आंसर यहीं पे कहीं पे है। Virat, you are going to explain me why this is not given. Okay, I am unmuting Virat and he is going to explain me why this is not given. Hello. Hi Virat, how are you? I'm good. I'm good. Thank you. See, So in the third last line. In the third last line. Virat, let us have give him a minute. I want you to read the question first. The question is, John never returned to Australia to see the completed building. मतलब क्या, इसका मतलब क्या हुआ? वो ऑस्ट्रेलिया वापस नहीं आया once the building was completed to see the building. वेरी गुड। उस उर्जोन ने आर्किटेक्ट, आपको पता होगा कि ये पूरे पैराग्राफ में हमने ये पढ़ा था कि उसके और गवर्नमेंट के बीच में थोड़ी सी तू मैंने हो गई थी, वो कॉस्टिंग के बारे में। और वो आपको पता होगा। और इक्वेशन में लिखा है कि वो कभी देखने को नहीं आया बिल्डिंग को ऑस्ट्रेलिया में। ओके, नाउ कैन यू टेल मी द लोकेशन ऑफ द आंसर इफ एट ऑल यू कैन हेल्प? From the bottom is the third line. एक काम करते हैं, यहाँ ये यू वांट मी टू The Urjan left the country. मैं यहाँ पे सैडली से आप पढ़ो, सैडली से। हाँ, Sadly, the state government of the day interfered the Urjan. इंटरफियर मतलब उसके साथ दखल अंदाजी की है ना, विद उर्जोन प्लान्स। Because of the concerns about the escalating क्योंकि cost. उसकी एस्केलेटिंग कॉस्ट मतलब उसकी कीमत बढ़ रही थी। एग्जैक्टली। हाँ, Though this was hardly surprising, the building was originally expected to cost only 5.5 million pounds. हाँ, Urjan left the country before completing the project, and in a fit of anger, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिट ऑफ एंगर? गुस्से में। गुस्से में, ठीक है। Right. वाउड का मतलब शपथ लेके गए। वेरी गुड, शपथ लेके गया कि मैं वापस, क्योंकि उसके गवर्नमेंट से तू मैं हो गई। हाँ, कि मैं वापस, never return, right? वेरी गुड, मैं कभी भी ऑस्ट्रेलिया वापस नहीं आऊंगा, उसने ऐसी शपथ ली। इज इट गेटिंग क्लियर? ओके। तो और यहाँ पे लिखा है कि उर्जोन कभी वापस नहीं आया, तो जाहिर आंसर ट्रू नहीं होना चाहिए। उसने ऐसा शपथ लिया था कि नहीं आएगा, बट ऐसा लिखा नहीं है कि वो आया नहीं। वेरी गुड, देयर यू आर, वेरी गुड। थैंक यू विराट, थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग दिस। थैंक यू, आई एम म्यूटिंग यू नाउ। ओके ओके, थैंक यू। ओके, हैव यू अंडरस्टूड ऑल? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट छोटी सी चीज है लेकिन परेशान कर देगी। उसने क्वेश्चन में लिखा है कि वो कभी नहीं आया, और पैराग्राफ में लिखा है कि उसने शपथ ली थी कि मैं वापस कभी नहीं आऊंगा, लेकिन कहीं पे भी उसका जिक्र नहीं है कि एक्चुअली ऐसा हुआ कि नहीं। मैं शपथ लेता हूँ कल मैं चला जाऊंगा, लेकिन शपथ ली है ना, फैक्ट नहीं है। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन इज ऑल अबाउट फैक्ट्स, यू नीड टू एक्सप्लेन, कंपेयर दैट विद द फैक्ट। तो यहाँ पे लिखा है कि वो नहीं आया, और यहाँ पे लिखा है उसने शपथ लेके नहीं आया, लेकिन आया कि नहीं आया वो हमें पता नहीं है, शायद आया भी हो या नहीं आया हो। सो आंसर इज गोइंग टू बी नॉट गिवन। हैव यू अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? यस और नो? नाउ इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस। क्लियर हुआ? सबका क्लियर हुआ? ये आपको देखो छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये आपको बहुत परेशान करेगी व्हेन यू आर डूइंग द रीडिंग पैसेज। तो ये छोटी चीजें समझो, फैक्ट्स के साथ कंपेयर करोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। क्लियर? ओके, सो लेट मी एंड दिस सेशन नाउ। इट इज ऑलमोस्ट, अभी कितना हो गया, 1 घंटा और 8:45-9:10 बजने को आए हैं। सो थैंक यू फॉर रिमेनिंग। मैंने सोचा नहीं था कि इतना लंबा सेशन चलेगा, बट आई एम हैप्पी दैट यू पीपल ऑल वेर देयर। सो हमने 2 चीज यहाँ पे की आज। एक तो हमने किया एक्टिव पैसिव वॉइस, और आपको वो टेबल याद रखना है, अंडरस्टूड? एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये आपने ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में शायद आपको काफी अंडरस्टैंडिंग आई होगी ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में क्या करना है, एंड आई होप यू विल कैरी दिस अंडरस्टैंडिंग इन योर एग्जामिनेशंस। Thank you so much, students. I hope you enjoyed the lecture. Okay. Thank you, students. Thank you.
Thank you, everybody. Thank you so much. Good night.